All right, viewers, 2 days ago, the centre, with the Prime Minister coming out apologising, assured that the 3 contentious farm laws will be rolled back by the end of this month during the winter session. But farmers have refused to budge till all due legal processes are clear. They've also said that now they want MSP to be written in the letter of law. BKU leader Rakesh Tiketh has demanded further talks with the centre on a host of issues. Here's what we know till now. ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को 3 days after Prime Minister Narendra Modi announced a rollback of farm laws, farmer agitations continue. The Sanyukt Kisan Morcha led a Mahapanchayat in Lucknow, pressing their demands on a number of issues. Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tiketh demanded a legal guarantee on minimum support price from the government. देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। The farmer leader wants the centre to engage with farmers on seed and power bills, along with a policy on milk. दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 22 रुपया लीटर दूध हम गांव में बेचेंगे, बड़ी कंपनियां उनके बेचेगी। उसी के साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं। उसमें है कि किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो दोनों का कनेक्शन मिलता है। दूध की पॉलिसी का और पशु को कैसे मारा जाएगा, दोनों का कनेक्शन एक है। ये खेती छीनने का प्लान है, इस पे आप लोग ध्यान रखना। Tiketh issued yet another warning to the government, saying they should either hold talks with the farmers or protests will continue. हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 मार्च की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। The farmers' agitation has become the single biggest focal point in Western Uttar Pradesh ahead of assembly elections early next year. ये भी बहुत सुखद है। With the rollback on farm laws, the BJP is hoping to take the wind out of the opposition sails, while the party's rivals see the decision as a sign of the BJP weakness. उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। जबरदस्ती थोपी गई 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को मदद करनी चाहिए, जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है। सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। In Punjab too, while the rollback may have come a little too late to tilt the scales, an alliance between Captain Amrinder Singh and the BJP may affect poll equations. All eyes now remain on the protesting farmers. Will they drag their agitation till elections to keep the pot boiling, or will they now call off their protests? Bureau Report, India Today. Which prompts us to ask the big questions this evening. Have the farmers changed their goal post, or
Is the demand for MSP legit, which they had all along? The other question that we ask, farmers dragging protest with eye on polls. What explains the Maha Panchayat that we saw today in Lucknow, 2 days after the Prime Minister already apologized, taking back the 3 laws? Is MSP guarantee feasible at all? Because the farmers have now stuck to the fact that they want MSP in the letter of law. Is the MSP the best way to ensure farmers' income? Well, that's the flip side to it. Shouldn't farmers be rewarded for the risk that they take? Let's cut across right now to our newsmaker of the day. I have Rakesh Tikait with me. राकेश टिकैत जी, आपकी मांग थी कि 3 काले कानून जो आप कहते थे वापस लिए जाएं, तीनों वापस ले लिए गए। अब आप कह रहे हैं कि एमएसपी का भी लॉ बनाओ। क्या ये पहले था या नहीं था? क्योंकि हमने तो बस यही सुना है कि 3 काले कानून वापस लीजिए, हम यहां से हट जाएंगे। नहीं, ये शुरू से ही मांग है एमएसपी। तो आप ये कहोगे कि बिजली अमेंडमेंट बिल भी नहीं था इसमें, उस पर बातचीत हुई और सरकार ने वापसी लिया। जो पुराली वाला था वो भी इसमें था, सरकार ने वापसी ले लिया था, कह दिया था कि 2 पर सहमति होगी। जब वो होती थी कि 50% सहमति होगी, भाई 2 पे होगी, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन हमारे थे, एमएसपी, ये 3 काले कानून और जो पुराली वाला था एक, और बिजली अमेंडमेंट बिल। जब उन्होंने 2 को वापसी लिया तो ये सब लोग कहते थे कि जी 50% हो गया। तो एमएसपी तो पहले से था, लेकिन बीच में जब सरकार आई नहीं 10 महीने तक, तो लोग इसको भूल गए सब लोग। एमएसपी पहले भी था, आज भी है, और हमेशा एमएसपी का एक बड़ा सवाल रहेगा। टिकैत साहब, एक चीज बताइए, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बोला देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझा नहीं पाया, घर जाइए, ये तीनों कानून जो आप लोग काले कहते हैं मैं वापस ले रहा हूं। अभी जो विंटर सेशन आएगा, सर्दियों का सेशन आएगा पार्लियामेंट में, उसमें सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। पर अब लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, जो आपका ये जो पूरा प्रोटेस्ट ये पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि आज जो आपने इतनी बड़ी महासभा, महापंचायत लखनऊ में की, इसका मतलब क्या था? क्योंकि यूपी तो इलेक्शन पे जा रहा है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने बोल दिया वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग लखनऊ में इतनी बड़ी महापंचायत करने के पीछे क्या था? ये पंचायत तो पिछले 1 महीने पहले रखी हुई थी, ये कैंसिल हो गई थी, क्योंकि उधर पानी आ गया था पूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बहुत हिस्से में। ये पंचायत रखी गई थी अजय टैनी के खिलाफ, जो लखीमपुर घटना थी। ये पंचायत अब आई, ये दोनों एक जगह मिल गए कि अब कानून वापसी भी और ये पंचायत भी, दोनों में 2 दिन का अंतर रहा। तो ये लगता है कि जब वो वापसी हो गए, और ये पंचायत क्यों कर रहे हैं, ये पंचायत पहले से प्रस्तावित थी। चलिए टिकैत साहब, मान लेते हैं ये पंचायत पहले से थी, आपने पहले प्लान कर रखी थी। आप तो कह रहे हैं जब तक वापस नहीं ले जाएंगे सारे तीनों कानून, आप जो भी आपके प्लान हैं पहले के, आप वो करेंगे। पर आप खुद की बात कीजिए टिकैत साहब, आप एक के बाद एक राजनीतिक टिप्पणियां दे जा रहे हैं। आपने आज बोला कि ओवैसी बीजेपी की टीम बी है। अब चाहे ओवैसी बीजेपी की टीम ए हो, बी हो, सी हो, इसमें किसान का क्या मतलब? आपको क्या सिर्फ जो लॉज हैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहिए? चलो एमएसपी की अभी आपकी मांग है, उसके लिए बात नहीं करना चाहिए? ओवैसी के पीछे क्यों पड़े हैं आप? अब अच्छा क्या जवाब दूं? फिर मैं चुप रहूं कि जवाब ना दूं कुछ? जब हमारे से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो क्वेश्चन का जवाब तो देना ही पड़ेगा, या क्वेश्चन का जवाब ना दे? भाई आप क्वेश्चन ना करो, हम जवाब नहीं देने के। हम अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देते, जो आप क्वेश्चन पूछते हो हम उसका जवाब देते हैं। ये गांव के लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। तो आप राजनीति कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टेज पे आपने ओवैसी पे हमला किया, वो राजनीति नहीं है? हाँ, राजनीति में तो हम पढ़ते ही नहीं, राजनीति से तो हम बहुत दूर रहते हैं, राजनीति के तो हम पास को भी नहीं जाते। चलिए टिकैत साहब, अगर आप राजनीति से दूर रहते हैं, एक चीज और बता दीजिए ना, क्योंकि सुनने में आया है आप जयंत चौधरी से भी बात कर रहे हैं। कोई बातचीत हुई है आरएलडी जयंत चौधरी से? जो 20 मिनट पहले जिसने क्वेश्चन करा उसने भी यही करा, और जिसने 1-1.5 घंटा पहले करा उसने भी इसी का नाम लिया। तो इसका मतलब ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं चैनल पे क्वेश्चन आते हैं क्या? हमारा क्या मतलब? चैनल वाले समझदार हो। हमारा क्या? आप कह रहे हैं आप पॉलिटिक्स में नहीं है, पर आप एक के बाद एक राजनीतिक टिप्पणियां दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी आपसे एक या दो राजनीतिक सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना सर।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का राकेश टिकैत जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।